Hello students, नाटा नोटिफिकेशन हैज बीन अनाउंस्ड एंड सभी बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के हैं एंड those who want to make a career in B architecture, so NATA is mandatory for you. B Arch में जाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप जेई पेपर 2 देंगे या आप नाटा देंगे। एंड नाटा के थ्रू जब आप पेपर देते हैं तो आप इंडिया के बहुत सारे रिनाउंड आर्किटेक्चर कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। सो माई सेल्फ रेखा केजरीवाल, योर डिजाइन मेंटर एंड करियर कोच, today we will discuss about all the details which has been announced in the NATA notification. तो आइए स्लाइड बाय स्लाइड हम देखते हैं कि नाटा ने क्या अनाउंस किया है और आपके लिए किस तरह की जानकारी बहुत जरूरी है। So NATA is National Aptitude Test in Architecture and it is conducted by Council of Architecture. So all the architecture admissions are governed by Council of Architecture. कोई भी आर्किटेक्चर कॉलेज आपका इंडिविजुअल एग्जाम नहीं ले सकता। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नाटा को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या बनती है। सो नाटा का एग्जाम if you are in class 11th or you are in class 12th, that means class 12th appearing student, or you are a diploma student, then also you can give NATA. But यहाँ compulsion क्या है? So the compulsion is class 11th में you should have PCM, 12th में भी you should have PCM, that is physics, chemistry and maths. And if you are doing a diploma after your class 10th, then you should have maths as one of the compulsory subject. इसके अलावा क्या जानना जरूरी है? So no candidate shall be admitted to architecture course unless she has passed 10th plus 2 or equivalent examination without, देखो फिजिक्स और मैथ्स तो कंपल्सरी है ही, है ना, ये आपके क्लास 11th एंड 12th में कंपल्सरी सब्जेक्ट है। बट एज मेंशन्ड केमिस्ट्री, सो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ इफ यू हैव केमिस्ट्री और बायो और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इवन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज with at least 45% marks in aggregate, and if you are doing a diploma then you should have maths as one of the compulsory subject with 45 marks in aggregate. तो ये बहुत important information है before applying to NATA. क्लास 11th के बच्चे या 12th के बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैंडेटरी है एंड केमिस्ट्री के साथ के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपने देख लिए, एंड दोज हु आर डूइंग अ डिप्लोमा आफ्टर क्लास 10 वो 3 साल का होना चाहिए with maths as one of the compulsory subject with 45 marks in aggregate. So now let us know about the examination pattern. नाटा का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम होगा, what is the duration, what they are going to ask, how many subjects will be there. तो आप देखिए नाटा का जो पूरा का पूरा पेपर है that is divided into 2 parts. 2 parts में you can see part A which is a drawing and composition test. ये टेस्ट ऑफलाइन मोड, दैट मीन्स पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होगा ये, एंड ये टेस्ट ड्यूरेशन जो है 90 मिनट्स की है विथ 80 मार्क्स। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज पार्ट बी व्हिच इज MCQ and NCQ. So you know what is MCQ? It is multiple choice question and NCQ here is no choice question.
Alright, so this is going to be a computer based adaptive test. ये भी 90 minutes के लिए होगा, जहां आप on an average calculate करेंगे तो 10 second for each question, and this test is going to be for 120 marks. So total marks क्या है? अगर आप नाटा दे रहे हो, so for how many marks the exams will be conducted? So it will be 200. Alright, 200, जहां पार्ट A 80 मार्क्स है एंड पार्ट B जो है वो आपका 120 मार्क्स है. एक और चीज जानना बहुत जरूरी है, पार्ट B जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के 2 सेक्शन है, जहां आपने देखा एक MCQ है और एक NCQ है. MCQ इज multiple choice question and NCQ is no choice question, जहां आंसर कोई नंबर भी हो सकता है. तो MCQ की कैटेगरी में इन टोटल यू हैव 42 questions and NCQ कैटेगरी में you have in total of 8 questions, so total 50 question, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट है. So total 50 questions for 120 marks. So grand total part A and part B, it is 200 marks. So I hope नाटा के क्वेश्चन पैटर्न जो कि पार्ट A, पार्ट B, कितने क्रिएटिव क्वेश्चंस, कितने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन, ये आपको समझ आ रहा है. टोटल जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 hours, 90 minutes plus 90 minutes that is 180 minutes, so 3 hours का पेपर है. Now एक चीज नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले, now if you are doing a drawing and composition based test, you have to solve 3 questions in total. और ये 3 क्वेश्चन में you already have the mark segregation, जहां आपका एक क्वेश्चन कंपोजिशन एंड कलर बेस्ड है, जिसके रेफरेंस में एंड में आपको दिखाऊंगी, ये 25 मार्क्स के लिए. दूसरा क्वेश्चन अगेन स्केचिंग एंड कंपोजिशन बेस्ड, जो ब्लैक एंड व्हाइट, यहां यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी कलर, दैट मीन्स यूजिंग योर पेंसिल ओनली यू आर सपोज टू एड सम texture or shading or source of light to your artwork. So black and white, this is also going to be of 25 marks. Third question जो है 3D composition, जहां आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक किट दी जाएगी जिसमें कुछ पेपर्स, कार्डबोर्ड, फोम पीसेस या कोई और बहुत इजीली हैंडल जो आप कर सकते हैं वो 3D मटेरियल होगा. एंड उस 3D मटेरियल को मे बी यू हैव टू अरेंज, पेस्ट, टाई एंड क्रिएट अ 3D स्ट्रक्चर आउट ऑफ इट. मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कार्डबोर्ड के पीसेस थे, ठीक है, और वो कार्डबोर्ड के पीसेस जो है वो स्क्वायर साइज के रहे होंगे, शायद उनका डायमेंशन एक जैसा भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है. सो पॉसिबली दे आर आस्किंग यू टू क्रिएट और शो रिदम यूजिंग दोज पीसेस ऑफ स्क्वायर कटआउट ऑफ कार्डबोर्ड. तो ये थर्ड क्वेश्चन है. तो मटेरियल हैंडलिंग से आप ज्यादा परेशान ना हो, इट इज वेरी इजी. ऐसे ही मटेरियल होते हैं जो आप बहुत आसानी से उसे टाई कर सकते हैं, उसे पेस्ट कर सकते हैं, उसे एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर सकते हैं एंड एज पर क्वेश्चन आप अपना 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं. सो दिस हैपेंड इन द लास्ट ईयर. लेट्स सी इस बार जब प्रोसेस शुरू होगा तो इस बार वो क्या नया करते हैं. पर जो भी करेंगे, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे, आप बहुत आराम से सॉल्यूशंस दे पाएंगे. तो अब हम देख लेते हैं अब हम देख लेते हैं जो मीडियम ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में होगा. बट नाटा विल बी कंडक्टेड इन 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी. नाउ पार्ट ए जो ड्राइंग एंड कंपोजिशन बेस्ड टेस्ट है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली, इसकी मार्किंग स्कीम्स एंड ऑल. अब कंसर्न क्या है कि आप इसमें से
आप यहाँ क्या पूछेंगे, क्या सिलेबस होगा, क्या जजमेंट होगी। सो पार्ट ए जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कंपोजिशन एंड कलर बेस्ड है, जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सो हियर यू हैव टू क्रिएट अ सूटेबल कंपोजिशन फॉर वेरियस सिचुएशन। कोई रियल लाइफ कंपोजिशन हो सकती है, जैसे कोई बोनफायर बनाना या रेलवे स्टेशन बनाना या रेस्टोरेंट बनाना, एंड एज पर द अदर डिटेल देन ऑफ वेरियस सिचुएशन एंड कलरिंग देम properly. आप मॉल के अंदर हो, so you have to draw that scene and color it, or rearranging various shapes in visual appealing manner and coloring it suitably. So अलग अलग shapes, जैसे you might have to create some composition using square, or you might have to create something using triangles. मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो नाटा ने पूछा था, जहां आपको डिपिक्ट करना था फ्लाइट यूजिंग triangles and then you were supposed to color it. तो ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। तो आप बहुत ध्यान से जब आप प्रिपेयर करेंगे, so make a list of question, do a strong practice of all fundamental, keep a stopwatch in front of you and see how you are solving all the given questions. अगर questions नहीं पता, you can check with our helpline numbers, they will guide you from how you will get the question paper, or even if you want कि भाई आइडिया नहीं है, हमें प्रिपेयर करना है, तो आपको प्रिपरेशन के लिए और करेक्ट गाइडेंस के लिए भी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हेल्प मिलेगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन विच इज स्केचिंग एंड कंपोजिशन, जो ब्लैक एंड व्हाइट है, जहां आपको कोई भी कलर नहीं करना, तो वहां देख लेते हैं। So they will judge your ability to draw, visualize and depict situation involving buildings, its component, people, environment, product, understanding of scale, proportion, texture, shades and shadow. तो फिर से इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको रियल लाइफ सिचुएशन दे दी जाए, आपको रियल सराउंडिंग्स दे दी जाए, या आपको एक ऐसी सिचुएशन दे दी जाए जहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, so that you are just supposed to draw using your pencils, add texture using your pencils and do not use color. Again for example, अगर आपको बोलते हैं कि आप बनाइए, आप कोल्ड विंटर नाइट में यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, तो आप कैसे डिपिक्ट करेंगे? सो यू अगेन नीड टू ड्रॉ मे बी पीपल, सराउंडिंग, हिल्स, ठीक है, टू डिपिक्ट दैट कोल्ड विंटर नाइट। और या अगर ऐसा हो गया कि दैट दे आर सेइंग दैट यू आर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स एंड यू कैन सी अ टेम्पल in front of you, so how will you depict that complete scenario? That can also be possible here, but क्योंकि यहाँ पर shapes और objects की भी बात की गई है, light and shadow की भी बात की गई है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको combination of objects दे दिए जाए, जहाँ पर कुछ cubes, जहाँ cuboids, prisms और real objects you are supposed to compile, mark a source of light and render the same and cast its shadow also. So this might happen. तो कहने का मतलब you have to be prepared thoroughly, क्योंकि 25 plus 25 50 marks ये आपके हाथ में है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर एवरेज मार्किंग हो जाएगी, और एवरेज मार्किंग हो गई तो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन कंपोजिशन, जो 30 मार्क्स का है, जहां पर यू नीड टू क्रिएट 3D composition of for the given situation using the provided part B, which is 1.5 hour 90 minutes test of 120 marks, will judge you on various kind of reasoning abilities. आप देखिए, visual reasoning ability, logical derivation ability, GK architecture, design, general awareness, and then design sensitivity and thinking abilities and numerical ability, basic mathematics. तो ये इनकी मेजर हेडिंग्स है वेयर यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। इन सभी एरियाज के कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल्स मैं अभी आपको अपकमिंग स्लाइड्स में दिखाऊंगी।
रीजनिंग अपने आप में ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे वो वर्बल रीजनिंग है, चाहे वो नॉन वर्बल रीजनिंग है, चाहे स्पेशल रीजनिंग है। सो यू रियली नीड अ वेरी गुड प्रैक्टिस, और थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप ये सारे के सारे मार्क्स they just depends on practice. If you practice well, you can score maximum. Of course, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। सो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड एंड डिजाइन अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखा गया है कि जब क्वेश्चन पेपर आते हैं वहां आपको अबाउट आर्किटेक्ट्स, अबाउट टेक्सचर, अबाउट मटेरियल, अबाउट सम टेम्पल स्ट्रक्चर, about the creation of the architect, about some building structure, they ask you different kind of question. There can be architectural terminologies. तो जब तक आप पेशेंटली बैठकर फोकस होकर हर टॉपिक पर प्रिपेयर नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, नाटा में मैक्सिमम मार्क्स लाना शायद चैलेंजिंग हो जाएगा। नाउ लेट्स चेक नेक्स्ट। यस, तो अब ये है अटेम्प्ट्स के बारे में, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है बच्चों को। नाटा में आप कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं? तो जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था, इस बार फिर से नाटा ने आपको 3 अटेम्प्ट देना अलाउ किया है, ठीक है। एंड एक और चीज है, जो 2024 में जिन्होंने नाटा में कुछ मार्क्स स्कोर किए थे, जो कि कहा जाता है कि 1 ईयर तक मार्क्स वैलिड होते हैं, तो आइए जानते हैं कि नाटा ने क्या अनाउंसमेंट की है। सो द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर नाटा 25। सबसे पहली चीज पार्ट ए, जो कि आपका क्रिएटिव वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर 20 मार्क्स लाना मैंडेटरी है। 20 मार्क्स आउट ऑफ 25 plus 25 plus 30. So out of 80 marks you have to score 20. ये मैंडेटरी है। देन पार्ट बी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यहाँ 30 मार्क्स लाना मैंडेटरी है। सो 30 मार्क्स आउट ऑफ 120, क्योंकि नाटा जो है कंप्लीटली 200 मार्क्स का पेपर है। बट यहाँ सबसे बड़ी एक और जानकारी जो आपको होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये जो 20 और 30 मार्क्स हैं, ये तो ठीक है, बट एग्रीगेट में आपको 70 लाना जरूरी है, ठीक है। ये मैंडेटरी है, ये लाना है, बट अगर आप 70 स्कोर नहीं करते आउट ऑफ 200, देन यू वोंट गेट एडमिशन इनटू आर्किटेक्चर कॉलेज। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और एक अच्छे आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए जो एक रेस्पेक्टेबल स्कोर होता है, विच यू कैन स्कोर वेरी इजीली, सो दैट इज समवेयर नियर 150, है ना। 150 के आसपास या उससे ऊपर आप लाओगे तो वो एक रेस्पेक्टेबल स्कोर है, और इस रेस्पेक्टेबल स्कोर के लिए नेचुरली यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। अब आइए आप देख लेते हैं अटेम्प्ट्स के बारे में। So what NATA is telling you regarding the attempts? So I'll show you. Now, so you can check those who appeared in 2024. It's okay. ऐसे भी ये स्कोर जो है 1 साल के लिए वैलिड होता है, और इस ईयर अब ये वैल्यूबल नहीं रह पाएगा, ठीक है। अटेम्प्ट्स इन नाटा नाउ, अभी जो आप 2025 में अटेम्प्ट दोगे और फाइनल स्कोर क्या कंसिडर होगा। सो फर्स्ट अटेम्प्ट, जब आप पहला अटेम्प्ट देंगे तो दे आर सेइंग, क्योंकि 1 साल तक स्कोर वैलिड होता है, 2024 एप्लीकेंट्स जो थे, ये स्पेशली उनके लिए है कि आपका बेटर ऑफ बोथ स्कोर, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड लास्ट ईयर स्कोर, सो दे विल इवैल्यूएट दैट। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट आप दे देते हैं, 2 अटेम्प्ट आप देते हैं, तो बेस्ट ऑफ 3 नाटक का स्कोर, बेस्ट ऑफ 3 स्कोर्स विल बी कैलकुलेटेड। और अगर आप तीनों अटेम्प्ट देते हैं, देन 2024 का जो स्कोर था ये इनवैलिड हो जाएगा, एंड बेस्ट ऑफ 3 स्कोर्स जो आप 2025 में दे रहे हो, ये स्कोर जो है वैलिड रहेगा। तो इसे आप बहुत अच्छे से जान लें। एक बात और बता दूं, 2 नाटा ने आपको 3 बार अटेम्प्ट देना अलाउ किया है, बट ये कंप्लीटली आपकी मर्जी है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको तीनों अटेम्प्ट देने हैं। आप अपनी मर्जी से ओनली 1
और 2 और 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अब नाटा आप कब कब दे सकते हैं, कब से शुरू होने वाला है, एंड व्हाट वुड बी द शेड्यूल। सो दिस टाइम जैसा लास्ट ईयर हुआ था, आपके पास एक फिक्स डेट नहीं है, बट यस यू हैव अ फिक्स शेड्यूल फॉर सम पर्टिकुलर मंथ्स। जान लेते हैं वो क्या है। तो अगर आप नाटा देने वाले हो तो दिस शेड्यूल इज ऑलरेडी मेंशन विथ यू, जो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो नाटा इज कमेंसिंग फ्रॉम 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च से आप नाटा देना शुरू कर सकते हैं, एंड दिस विल बी कंटिन्यू टिल जून। ऑलराइट, एग्जाम कब कब होंगे? फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे मॉर्निंग सेशन नहीं होगा, सो फ्राइडे ओनली 1 सेशन जो कि आफ्टरनून सेशन है, दैट इज 1:30 PM to 4:30 PM. But Saturday the exams will be conducted in 2 shifts. All right. So morning shift 10 to 1, afternoon shift 1:30 to 4:30. तो जब आप रजिस्टर करेंगे तो आप इन शिफ्ट का ध्यान रखेंगे एंड अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप ये एंट्रेंसेस को खुद के लिए बुक करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे प्लीज नाटा की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ब्रोशर डाउनलोड कर ले। ये इंफॉर्मेशन भी ऑफिशियल ब्रोशर से आपके सामने लाई गई है। सो दीज आर द एप्लीकेशन फी। जनरल कैटेगरी के लिए द फी इज 1750, रिजर्व्ड कैटेगरी 1250, ट्रांसजेंडर यू कैन सी, एंड आउटसाइड इंडिया स्टूडेंट इट इज 15,000. सो दिस इज द एप्लीकेशन फी पर टेस्ट। याद रखें, मार्च से नाटा is getting started. Now these are certain do's and don'ts. Let's quickly check. क्या करेंगे आप? इन do's and don'ts को आप बहुत ध्यान से देख लें। Read all the online instructions carefully. आप जब भी किसी ऑफिशियल एग्जाम को देते हैं तो every time it is mandatory कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी की सभी जरूरी जानकारियां जरूर पढ़ें। Alright, so read all the important instruction, specifically the personal information, क्योंकि एक भी personal information while application गलत हो गई, so this will create a trouble and possibly आप exam नहीं दे पाएंगे। Remember your username, security, question, answer and password. So being a faculty, ये मैं every year face करती हूँ कि बच्चे अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, बच्चे अपना यूजर आईडी भूल जाते हैं। तो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप एक सेफ डॉक्यूमेंट में अपने यूजर नेम, पासवर्ड और अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन को सेव करके रखें, जिससे आपको परेशानी ना हो। चूज द सिटी ऑफ टेस्ट सेंटर केयरफुली। आप वही सिटी चुने जहां ट्रैवल करना आपके लिए आसान हो। अपलोड कलर्ड फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर ऑफ द स्पेसिफाइड साइज ओनली। कई बार कॉल्स आते हैं कि आपको इन डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, सो दिस इज अगेन बिकॉज यू डू नॉट रीड एंड एक्ट एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। सो अपलोड कलर्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द स्पेसिफाइड size only. Then please keep a copy of confirmation page. हमेशा एक कॉपी को आप सेव करके रखें जिससे आपको आगे परेशानी ना हो। Follow the time schedule as mentioned in the brochure and your appointment card. So appointment card is very very important. Carry printed copy of the appointment card to the examination hall. है ना, डिजिटल कॉपी जनरली एक्सेप्ट नहीं होती, so printed copy. Carry pencils, erasers, sharpeners, tricolor, scale up to 15 centimeter for your creative paper. So that is important, and only candidates with appointment card shall be granted entry to the examination hall. Appointment card नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। Don'ts, so never disclose your security question or your login ID or password to any external person, and don't even share your email address and mobile number while filling up the form process. Alright, so candidates are advised to ensure that email address furnished in the application form is active, जिससे अगर email पर कोई communication हो रही है तो आप उसे देख पाएं, failing which they may face serious problem for any future correspondence. The council shall not be responsible for the same. Don't upload a poor quality scanned photograph or signature.
Don't send duly filled in confirmation page or any document through post to COA office. They are not going to entertain, they are not going to take care of it. जो हेल्पलाइन की प्रोसेस है थ्रू email, that only you can follow. Physical copies are never entertained. Don't spoil the hard copy of your downloaded appointment card. है ना? Don't bring blade, mobile phone, calculator or any other electronic gadget inside the examination hall, and don't bring any instrument inside the examination hall. These are general instructions. आप सभी ने और भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, so you must be knowing कि आपको क्या नहीं करना. So now I am showing you some examples of visual reasoning ability. किस तरह के question expected हैं. So I'm not discussing these questions. I am just showing these questions to you as a reference so that you can figure out what you need to practice and how hard you need to practice. आप इन questions को देखिए, ये सभी question B आर्किटेक्चर के हैं जो अलग अलग एंट्रेंसेस में आ चुके हैं. अगर आपने ये प्रैक्टिस करी हुई है तो ठीक है, बट अगर आपकी ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है तो रिस्क ना ले. कोशिश करें कि फुल्ली अपने आप को प्रैक्टिस मोड में लाने के बाद आप अपनी डेट बुक करें और एग्जाम्स को अपीयर करें. सो अगेन यू कैन सी द क्वेश्चंस we are trying to show you different kind of questions. So see, this question is based on light and shadow. ठीक है? We have also marked the answers for you just for your reference. क्योंकि अगर हम इसको अभी पढ़ाएंगे तो काफी देर हो जाएगी. Yes. So some more questions which may be the part of your general aptitude test. All right. Now some architecture and general question जो architecture aptitude का part हो सकते हैं, आप देख सकते हैं. So even general awareness is a part of it. Then these are some specific question based on architecture. जब तक कि आप इन टॉपिक्स को अपना समय नहीं देंगे, आप इनके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएंगे. You can see few more questions. They are very much relevant to this architecture awareness. ठीक है? आर्किटेक्चर को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, जहाँ आर्किटेक्चर की हिस्ट्री, देन आर्किटेक्चर about architects, about texture, about material, and there are many more specific topic projections. So that I mean, जब सारे पार्ट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तभी आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करोगे. Now some English because it was written, language and creativity. So we have seen reading comprehension passages and the grammatical aptitude. They were also asked in the architecture. Some questions which are based on design sensitivity and thinking abilities. There can be a lot of variety, but just few examples to make you aware. Questions can be from signage, question can be from numerical ability. Some more questions on numerical ability, which is your basic maths. So ये questions आप देख सकते हैं. Now this is something very important, है ना, जो कि 80 मार्क्स का पेपर है. इफ यू आर वेल प्रैक्टिस्ड यू कैन स्कोर अगेन मैक्सिमम. जीके में कई बार आप कुछ चीजें भूल सकते हो, मैथ्स मिस में आपसे कुछ गलतियां हो सकती है. ठीक है? किसी क्वेश्चन का आंसर शायद आपको याद नहीं हो सकता, बट क्रिएटिव एक ऐसा पार्ट है जहां आप कुछ भूल नहीं सकते. अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा आंसर ड्रॉ करोगे एंड यू विल गेट गुड मार्क्स. एंड दिस सपोर्ट्स द कंप्लीट मार्किंग सिस्टम ऑफ नाटा. 80 में अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप 60-70 तक स्कोर कर सकते हो. So these are few questions based on drawing and composition test. So here you can see it's a composition where you can see a bonfire where family members are sitting and you can see that it is specifically a pencil rendering जो black and white part है. तो कुछ question ऐसे हो सकते हैं. Then composition based question. So you can see it is an art exhibition
and you can see blend of colors here. So if you draw, if you practice yourself, but इसके लिए strong fundamental चाहिए. जब आप ऐसी question practice करते हो तो perspective and human figure and color rendering and object study and compositional skills आपको सब कुछ आनी चाहिए. Now you can again see drawing and composition based question. So a very good example of perspective, which is showing your compositional skills also, but itni efficiency can be derived only once you practice very well. And ये सभी practice अगर आप अपने आप को, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे कि शायद कितना समय देना पड़ेगा जिससे मैं इस तरह का काम कर पाऊं, तो बेटा आप प्लान कर लीजिए. आप नाटक का एंट्रेंस डेट बुक करने से पहले अपने आप को अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 मंथ का समय दीजिए. 12th बोर्ड्स हो रहे हैं, सो इन बिटवीन करिए या 12th बोर्ड के बाद करिए. हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जून एंड तक आपके पास डेट्स अवेलेबल है. तो अपने आप को 1 से 1.5 महीने का समय दीजिए जहां पर आप सारे के सारे टॉपिक से अवेयर हो जाइए और जस्ट लाइक क्लास 12th एक फोकस्ड समय अपनी प्रैक्टिस को दीजिए जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाए और शायद अपने ड्रीम कॉलेज को ज्वाइन कर पाए. अगेन फ्यू क्वेश्चंस ऑन ड्राइंग एंड composition where you can see blend of where you can see rendering and still life, what kind of effect it is expected from you. अगर आप ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे so naturally we can expect that you will score well. So I hope जो भी हमने डिस्कस किया ये डिस्कशन आपके लिए काफी वैल्यूएबल था. मैं फिर से बोलूंगी कि इस डिस्कशन के बावजूद ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रोशर को डाउनलोड करके you can cross check all the information and before appearing for NATA give yourself a very good practice so that you score good marks in the first attempt only. कोई बात नहीं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो एज अ प्रैक्टिस निकल गया, आपको नहीं समझ आया, तो यू हैव सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट ऑल्सो. अपनी पुरानी कमियों पर काम करके फिर से पूरी तैयारी के साथ सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट दीजिए और बेस्ट स्कोर के साथ बेस्ट नाटा कॉलेजेस में अप्लाई करिए एंड एडमिशन लीजिए. सो इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन और एनी अदर गाइडेंस और आपको ऐसा लगता है कि हमें क्लासेस चाहिए या मेंटरशिप चाहिए, तो आप हमारे गिवन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं. सो थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.